This is fixed capital versus working capital. That is the last topic of our chapter financial management. Fixed capital जिन्होंने कल नहीं attend किया था उनके लिए थोड़ा सा I am going to repeat. This is the money we need to invest in fixed asset, and when you will read it on your own, you will find that it is same as of your long-term investment. And about that we have already discussed in our investing decisions, which he was calling capital busting decision. तो आपने बहुत सोच समझ के ये decisions लेने हैं, because once you took it wrongly, you are going to suffer a lot. ठीक है, so you have to think twice or thrice before buying a particular fixed asset, because in that you are going to spend millions or billions. So how can you afford to have a wrong decision or flop decision? So you need to be very careful in that case. When we see our working capital, this is the money we need to invest in our current assets, and that money we require to run our day-to-day operations smoothly. जो पैसा मेरे को डेली चाहिए अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को चलाने के लिए, something should be in my hand. And yesterday also I told you in your NCERT book he talks about gross working capital, GWC, and ultimately he arrived at NWC. NWC का वही फॉर्मूला है जो हम लोगों ने रेशियो एनालिसिस में वर्किंग कैपिटल का किया होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. तो यूजुअली हम इसी टर्म को यूज करते हैं व्हेन वी डिस्कस अबाउट वर्किंग कैपिटल. And working capital is laying emphasis on the liquidity position of your concern. What liquid money should be in your hand, और कुछ ऐसे कैश इक्विवेलेंट आपके हाथों में हैं जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं. Whenever you require the cash, hard cash, that money is available to you. So this is what formula, net working capital, which is the difference of current assets and current liabilities. It is obvious that current assets every time should be more than current liabilities. Some authors, they lay stress that there can also be the gross working capital, and gross working capital according to them is total of current assets. सारे current assets का total कर दो और उसमें से current liabilities minus ना करो तो हमारे पास जो capital आती है उसे हम gross working capital कहते हैं. Now we are going to discuss how a company, how a financial manager of a particular company will decide that how much working capital we need. For that we have certain factors to be considered. तो अगला टॉपिक ही यही है, factors affecting working capital requirement. आपको कैसे पता चलेगा आपको कम working capital चाहिए कि ज्यादा working capital चाहिए? So we have a list of those factors which we are going to discuss today. First point he has made, nature of business. Factors affecting the working capital requirements. That is the last topic of this chapter. Factors affecting working capital requirements. First point same as of fixed capital में जो था nature of business. वहां पे nature of business उसने trading और manufacturing concern कहा था. यहाँ पे nature of business क्या है? Let's discuss. Are you running a service concern or you are running a trading or manufacturing concern? He is talking about this. A trading concern usually needs a smaller amount of working capital as compared to the manufacturing organization. ध्यान से सुनना, एक ट्रेडिंग कंसर्न है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है. जो ट्रेडिंग कंसर्न है वो फिनिश गुड्स खरीदती है आगे रीसेल करने के लिए, और एक जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वो रॉ मटेरियल खरीदती है, उसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इनपुट की तरह यूज करती है, एंड इट यूज टू प्रोड्यूस द फिनिश गुड्स. सो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को इन्वेंट्री में ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल. So in that case, the working capital requirement of a manufacturing concern will be more. देखो यही लिखा उसने. A trading concern usually needs a smaller. Why a manufacturing concerns requires more capital? This is because there is usually no processing. Trading में कोई भी manufacturing process नहीं होता, तो आपको उस पे खर्चा नहीं करना पड़ता. Therefore, there is no distinction between raw material and finished goods. तो वहां पे ट्रेडिंग कंसर्न में रॉ मटेरियल में आपको अलग से इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता. जो आप खरीद के लेके आए हैं आगे रीसेल पर्पस के लिए ही लेके आए हैं, सो यू नीड नॉट टू इन्वेस्ट मोर इन योर रॉ मटेरियल. जैसे ही आप सामान खरीद के लेके आए, कोई गैप भी नहीं पड़ा, आपने सामान उतना ही खरीदा जितना आपका बिक जाता है. सो एज एंड व्हेन यू बाय द मटेरियल, इमीडिएटली आपकी सेल हो जाती है. यू नीड नॉट टू कीप द स्टॉक इन योर गोडाउन, इन योर वेयर हाउस. लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में क्या होता है? दे बायज द रॉ मटेरियल, they convert them into finished goods,
और जैसे फिनिश गुड्स में सामान कन्वर्ट होता है, आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, प्रमोशन करते हो, फिर कहीं जाके सामान आपका सेल होता है, तो देयर इज अ गैप, ठीक है, बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द सेल ऑफ द गुड्स. सो इट इज अ टाइम गैप बिटवीन. उतने टाइम के लिए आपको पैसा चाहिए होगा अपने बिजनेस को रन करने के लिए जब तक सामान नहीं बिकता. So for that purpose we say that manufacturing concern needs more working capital. इसी तरह से आगे जाके लास्ट वाले 3 लाइंस में एक बार उसने यही क्वेश्चन उठा लिया था सर्विस बिजनेस में. सर्विस बिजनेस लाइक यू आर रनिंग अ कंसर्न ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आपकी टैक्सेस वगैरह चलती हैं, तो उस केस में या बसेस आप हायर बेसिस पे देते हो, तो वो आपकी कौन सी कंसर्न है? सर्विस बिजनेस है. सर्विस इंडस्ट्रीज विच यूजुअली डू नॉट हैव टू मेंटेन इन्वेंट्री, उनको भी लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए क्योंकि उन्होंने इन्वेंट्री थोड़ी ना मेंटेन करनी है. ये सर्विस इंडस्ट्री में टैक्सेस खरीदने के लिए, बसेस खरीदने के लिए आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी, लेकिन वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी, बिकॉज दे नीड नॉट टू मेंटेन एनी टाइप ऑफ इन्वेंट्री. ठीक है, तो आपने तीनों कंसर्न्स का याद रखना है. ट्रेडिंग कंसर्न्स रिक्वायर्स लेस वर्किंग कैपिटल बिकॉज इट नीड नॉट टू कीप द स्टॉक of raw material. As and when they buy the material, immediately they sell it off. Manufacturing concerns require more working capital because they need to buy the raw material. They have to keep that raw material in their godown. कभी उनकी shortage नहीं होने देनी. अगर raw material की shortage होगी तो production में hamper. In that case, manufacturing concerns always requires more working capital. But at the end he is talking about the service industries. Service industries के केस में आपको इन्वेंट्री वगैरह मेंटेन नहीं करनी होती. Keep the example of transportation companies in your mind. So they need not to keep any type of inventory in their godowns. In that case also their working capital requirement is less. ठीक, आगे चलते हैं. ये second point भी हमारा सेम है. सो फिक्स कैपिटल के फैक्टर्स की तरह ही है. स्केल ऑफ बिजनेस. You tell if you are operating on a very large scale, इट मीन्स कि आपका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा आपको करना है क्योंकि मार्केट में आपके सामान की डिमांड बहुत ज्यादा है. आप अब सिर्फ अपनी कंट्री में ही सामान नहीं बनाते हो, बेचते हो, आप इवन एक्सपोर्ट भी करते हो. इफ योर स्केल इज वेरी लार्ज, यू नीड मोर. डायरेक्ट रिलेशन है. लार्ज स्केल, लार्ज विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. स्मॉल स्केल, स्मॉलर विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ योर वर्किंग कैपिटल. दिस इज स्केल ऑफ ऑपरेशन. बुक में से पढ़ते हैं उसने क्या लिखा है. इफ योर स्केल ऑफ ऑपरेशन इज लार्ज एनफ, हाई एनफ, देन यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल. For organizations which operate on a higher scale of operation, the quantity of requirement of inventory और even उस केस में आप ज्यादा सेल करना चाहते हो. जब आप ज्यादा सेल करना चाहते हो तो कैश सेल्स के साथ साथ आपको क्रेडिट सेल्स की भी हेल्प लेनी पड़ती है, जिसके कारण आपके डेटर्स बढ़ जाते हैं. तो डेटर्स जब तक मैच्योर नहीं होते उस टाइम पीरियड के लिए आपको मनी चाहिए होती है. ठीक है, सो दैट रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, दैट रिक्वायरमेंट ऑफ कैश इन दैट केस maximizes or that tends to increase because you are selling the goods on credit basis. Such organizations therefore require large amount of working capital as compared to the organizations which operate on a lower scale. जो small scale के ऊपर काम करती हैं उनकी requirement of working capital कम होती है because their product is not so much in demand. They are not producing on a high scale, they are producing on a small scale. They need not to keep the high quantity of inventory in their godowns forever. ठीक है, ready for your production process. तो उन केसेस में जहां पे आपका स्केल ऑफ बिजनेस स्मॉल है, लेस है, लो है, उस केस में आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी लो होगी. यस, अगला पॉइंट डिफरेंट है, ये फिक्स कैपिटल में नहीं था. बिजनेस साइकिल्स, मेरे को लगता है बिजनेस साइकिल्स में ही विल बी टॉकिंग अबाउट बूम पीरियड एंड डिप्रेशन पीरियड. देखते हैं. वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बूम पीरियड? व्हेन देयर इज मोर डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, मींस जो आप बनाते हैं वो बिक जाता है. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्रेशन? व्हेन देयर इज लैकेज ऑफ डिमांड, मार्केट में सामान की डिमांड ही नहीं है. पंजाबी में और हिंदी में बोलते हैं मंदी चल रही है बाजार में. द थिंग्स आर नॉट इन मच ऑफ डिमांड. जैसे इंडिया में आमतौर पे कहते हैं फेस्टिवल सीजन को बूम पीरियड कहते हैं क्योंकि लोग बहुत कुछ नया खरीदते हैं. और नवरात्रों से पहले शराब जब आते हैं तो मार्केट में डिप्रेशन रहता है क्योंकि लोग कहते हैं शराब के दिनों में हम लोगों ने नया सामान नहीं खरीदना. और कोविड-19 के दौरान भी मार्केट में क्या रहा? डिप्रेशन ही रहा बिकॉज द मनी वाज नॉट इन मच सर्कुलेशन. तो यू हैव टू सी कि मार्केट में कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है. इज देयर एनी बूम पीरियड और डिप्रेशन पीरियड? बूम पीरियड है तो जो आप बनाओगे वो बिक जाएगा, मींस आपको ज्यादा बनाना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है.
So according to me, in boom period working capital requirement will be more, and in depression period your working capital requirement will be less, क्योंकि आप बना तो रहे हैं सामान लेकिन बिक नहीं रहा। देखते हैं क्या होगा। Different phases of business cycles affect the requirement of working capital by a firm. In case of boom, the sales as well as productions are likely to be larger, so larger amount of working capital is required. इसके against working capital requirement will be lower during the period of depression, क्योंकि उस दौरान ना तो सेल होती है, अगर सेल नहीं होती तो why would you produce more? If you are not producing more, it means कि you need not to spend more on inventory. In that case working capital requirement will be less, क्योंकि business का जो लेवल है, बिजनेस की जो स्पीड है, बिजनेस की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल है, वो क्या हो रही है, कम हो रही है। सो डिप्रेशन में आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम चाहिए होगी, बूम पीरियड में आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी ज्यादा होगी। लेट्स प्रोसीड टू द फोर्थ पॉइंट। व्हाट योर बुक इज सेइंग? यस, सीजनल फैक्टर्स। सीजनल फैक्टर्स में मैं हमेशा एग्जांपल आइस फैक्ट्री की और हॉजरी इंडस्ट्री की लेती हूँ। आइस फैक्ट्री इज ऑन इट्स पीक ड्यूरिंग समर सीजन ओनली। ये नहीं है कि विंटर में उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट सिर्फ 10-15% रहती है विंटर सीजन में। ठीक है, समर सीजन में आइस फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट पीक पे होती है, मींस इतना वो प्रोड्यूस नहीं करते जितनी डिमांड रहती है। तो इफ यू आर डीलिंग इन दोज इंडस्ट्रीज व्हिच आर not doing the business for the whole of the year, rather their demand is only in peak seasons, तो peak seasons के दौरान ही आपकी working capital requirement ज्यादा होगी। same is with hosiery। ये नहीं है कि hosiery की जो manufacturing है वो summer में नहीं होती, summer में they used to produce but on a very less scale, and whenever the winter comes, demand क्योंकि market में ज्यादा होती है तो वो ज्यादा बनाना शुरू करते हैं। तो winter is the peak season for the hosiery industry। उस दौरान उनकी डिमांड ज्यादा है, दे प्रोड्यूस मोर, सो देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल आल्सो बी मोर। लेकिन जब आपके बनाए सामान का मार्केट में सीजन ही नहीं है, उस केस में आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है भाई, कम। देखो क्या लिखा उसने, मोस्ट बिजनेस हैव सम सीजनेबिलिटी या सीजनलिटी इन देयर ऑपरेशंस। इन पीक सीजन, मैंने भी यही बोला, हॉजरी का प्रोडक्ट्स का सीजन क्या है, विंटर है। आइस का सीजन क्या है, आमतौर पे यही माना जाता है समर में आइस क्या होती है, ज्यादा यूज होती है। सो उस केस में हायर लेवल ऑफ एक्टिविटी रहता है, इसलिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। एज अगेंस्ट दिस द लेवल ऑफ एक्टिविटी एज वेल एज द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विल बी लोअर ड्यूरिंग लीन सीजन। तो आपने सीजनल फैक्टर में दो सीजन्स की बात करनी है, वन इज पीक एंड अनदर इज लीन। हॉजरी प्रोडक्ट्स की कोई डिमांड करेगा समर में? विल वी प्रेफर टू वेयर वूलन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर? नो। तो वहां पे डिमांड क्या है, कम है। जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है आपके प्रोडक्ट की तो आप बनाओगे भी कम। अब बनाते आप पूरा साल हो, क्योंकि आपको लगता है विंटर में अगर उसी टाइम बनाना शुरू करेंगे तो हम उतनी डिमांड को कैप्चर नहीं कर पाएंगे या कैटर नहीं कर पाएंगे। सो इन दैट केस यू विल बी प्रोड्यूसिंग थ्रू आउट द ईयर, लेकिन समर में आप प्रोडक्शन का लेवल कम कर देते हो। दिस इज व्हाट वी कॉल लीन सीजन। सिमिलरली आइस के लिए पीक सीजन क्या है, आइस फैक्ट्री के लिए पीक सीजन क्या है, समर। ठीक है, और लीन सीजन कौन सा है, विंटर। सो दिस थिंग यू हैव टू मेंशन हियर। यस, फिफ्थ पॉइंट वी हैव प्रोडक्शन साइकिल। यू नो प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है, लेट्स डिस्कस दैट। प्रोडक्शन साइकिल, फर्स्टली यू विल परचेज द रॉ मटेरियल। पहला स्टेप होगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। उस रॉ मटेरियल से आप कन्वर्शन स्टार्ट करोगे, उसके प्रोडक्शन प्रोसेस अप्लाई करोगे, यू विल गेट वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस के बाद आपके पास सेमी फिनिश गुड्स बनेंगे। सेमी फिनिश के ऊपर थोड़ी सी और वर्किंग होगी तो वो फिनिश गुड्स बनेंगे। फिनिश गुड्स की आप मार्केट में सेल करोगे तो हो सकता है सेल आपकी क्रेडिट पे हो तो डेटर्स बने। डेटर्स के बाद क्या बने, बीआर बने, और बीआर कैश में कन्वर्ट हुए। जो कैश आपके पास आया, आपने फिर उससे रॉ मटेरियल खरीदा और अगले साल का या अगले क्वार्टर का प्रोडक्शन प्रोसेस फिर से स्टार्ट हुआ। लेंथी द प्रोडक्शन साइकिल और लेंथियर द प्रोडक्शन साइकिल, मोर विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। मान लो 7 महीने लगते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स और सेल में कन्वर्ट करने में, सो इट इज अ वेरी लेंथी प्रोडक्शन साइकिल। उन 7 महीनों तक आपके पास कैश इन हैंड नहीं आना, तो उन 7 महीनों में हमने अपने बिजनेस के डेली ऑपरेशंस को कैसे चलाना है, फॉर दैट वी नीड मोर वर्किंग कैपिटल।
इफ यू हैव शॉर्टर प्रोडक्शन साइकिल, लाइक 15-20 दिन में ही आपका सामान बन के तैयार हो जाता है और बिक भी जाता है और बिकता भी कैश में ही है, तो बहुत जल्दी कैश इन हैंड आपके पास आ जाता है। सिर्फ आपको पैसा चाहिए होता है अपने डेली खर्चों के लिए, सिर्फ 15 दिन का मेंटेन करके रखना। तो उसके इसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या चाहिए होगी? कम। लेकिन लेंथियर और द लॉन्गर, इफ यू हैव the production cycle, you need more working capital, and if you have the smaller production cycle का मतलब क्या? टाइम पीरियड बिटवीन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड इट्स फाइनल सेल इन द फॉर्म ऑफ फिनिश गुड्स। कितने महीने या कितने दिन लगते हैं जिस दिन आप रॉ मटेरियल खरीद के लेके आए और उसके बाद किस दिन जाके आपने फाइनल सेल करी और सेल करने के बाद कैश इन हैंड आपको मिला। ठीक है, सो लेंथियर द पीरियड, more will be the requirement of working capital, smaller will this be, then you will be requiring less working capital. देखो इसने क्या लिखा, प्रोडक्शन साइकिल, मैंने भी बोला ना टाइम, so he is calling it time span. Production cycle is the time span between the receipt of raw material and their conversion into finished goods. यहाँ तक आपकी finished goods में हो गया था कन्वर्ट और आपकी सेल भी हो गई थी, but it is not essential that every time you are selling on cash basis. Sometimes you are forced to sell on credit basis, तो debtors बनेंगे, डेटर्स के बाद वो बीआर एक्सेप्ट करेंगे, फिर वो कैश में कन्वर्शन होगी। सो इन दैट केस मोर टाइम पीरियड या आपका जो टाइम स्पैन है प्रोडक्शन साइकिल का वो बढ़ जाता है। सम बिजनेस हाउसेस हैव द लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल एंड सम हैव द शॉर्टर वन। ड्यूरेशन एंड द लेंथ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल इफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर रॉ मटेरियल एंड डेली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। कॉन्सिक्वेंटली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हायर with longer processing procedure and working capital requirement will be less if you have a shorter production cycle. Done. So direct relation है, larger will be your production cycle, you require large amount of working capital. Shorter will be your production cycle, you will require less working capital. Credit allowed. Credit allowed means आपकी credit policy कैसी है? क्या आप अपने customers को सिर्फ कैश सेल्स करते हो या क्रेडिट सेल भी करते हैं? ठीक है, दो चीजें डिस्कस करेंगे, मैं दोनों इकट्ठी करवा देती हूँ। वन इज क्रेडिट अलाउड, अदर इज क्रेडिट अवेल्ड। क्रेडिट अलाउड एंड अनदर इज क्रेडिट अवेल्ड, दोनों ए से लिखा उसने। When you sell your goods on credit basis to your customer and you give them a lenient credit policy, आप उन्हें बोलते हो कोई बात नहीं 2-3 महीने 4 महीनों में आप हमें पेमेंट कर देना, that is lenient credit policy. In that case you need more working capital क्योंकि आपके पास कैश इन हैंड सेल के इमीडिएटली बात नहीं आना, क्योंकि आपकी lenient credit policy है, कुछ महीनों के बाद वो कैश में कन्वर्ट होगी। ठीक है, सिमिलर उस केस में आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए होगी। अब इसका उलट क्या है, इफ योर सप्लायर्स दे आर सेलिंग गुड्स टू यू ऑन क्रेडिट and they also are having the lenient credit policy in favor of you, तो आप सामान बेच तो लेते हो लेकिन अभी आपको अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं करनी, तो जितना टाइम वो आपको देते हैं पेमेंट करने के लिए, रिलैक्सेशन देते हैं, उतने टाइम पीरियड के लिए वो कैश इन हैंड आपके पास है, आप उनका कैश यूज कर सकते हो अपने बिजनेस के डेली ऑपरेशंस के लिए। सो इफ यू हैव lenient credit policy then you need more working capital requirement, but if you avail more credit from the market you require less working capital, क्योंकि आप अपने क्रेडिटर्स और सप्लायर का पैसा खुद के लिए यूज कर सकते हो, बिकॉज दे आर नॉट डिमांडिंग द कैश पेमेंट इमीडिएटली फ्रॉम यू। वो आपको कुछ महीनों का क्रेडिट पीरियड देते हैं। ठीक है, अगर आपकी क्रेडिट पॉलिसी खुद की लीनियंट है और सप्लायर की स्ट्रिक्ट है तो आपको क्या है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए होगी दोनों केसेस में। लेकिन अगर आपके सप्लायर की भी लीनियंट है तो आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, और आपकी खुद की स्ट्रिक्ट है तो भी आपको क्या चाहिए होगी, कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, क्योंकि आप आमतौर पे उधार पे सामान बेचते ही नहीं हो। जिनको भी बेचते हो दे आर नोन टू यू, दे आर योर ओल्ड कस्टमर्स, तो वो बहुत जल्दी आपकी पेमेंट कर देते हैं और बैड डेट्स होने के चांसेस भी ना के बराबर है। सो इन दैट केस यू हैव टू थिंक लाइक दिस वे, क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट अवेल्ड। यस, operating efficiency. Operating efficiency. What is the meaning of operating efficiency? Anyone from you? Take 2 minutes and get the reading of this 8th point, operating efficiency. How will you relate it with working capital requirement? I am going to ask from you. Operating efficiency. क्या explanation उसने book में लिखी है? 8th point everyone will read.
लेट्स सी आप कैसे आंसर करते हो। सेकंड। शुड आई और विल यू? एक सिंपल लाइन में बोलती हूँ, इफ यू आर एफिशिएंट इनफ टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, अगर आपका अपने एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल है, मींस आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखते हो, यू आर एफिशिएंट इन योर ऑपरेशंस, मींस यू हैव द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अगर मींस आपके एम्प्लॉयज प्रॉपरली ट्रेन्ड हैं, वो सामान की ज्यादा वेस्टेज नहीं करते, वो टाइम पे आते हैं, तो हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता, जो सैलरी हम लोग उन्हें दे रहे हैं या वेजेस उन्हें दे रहे हैं उसके बिल्कुल इक्वल हमें उनसे रिटर्न भी मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ देयर वर्क, इन द फॉर्म ऑफ देयर गुड जॉब, इन द फॉर्म ऑफ देयर डेडिकेशन। So once you are operating efficiently, means you have the full control over your expenses as well, means wastage time की नहीं हो रही, resources की नहीं हो रही, उस केस में you need less working capital। आप इमेजिन करके देखो सिचुएशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 100% काम कर रहे हैं तो उसमें से 80 न्यू वर्कर्स हैं, तो किसी भी न्यू वर्कर के लिए नए वर्क कल्चर में एडजस्ट होना इट विल टेक टाइम, और हो सकता है स्टार्टिंग के दिनों में वो बहुत ज्यादा वेस्टेज भी करें क्योंकि उन्हें अभी नई मशीन पे काम करना नहीं आता, तो उस केस में वेस्टेज ज्यादा होगी, हमें उन्हें समझाने और सिखाने के लिए भी टाइम लगाना पड़ेगा। इन दैट केस आवर टाइम इज बीइंग वेस्टेड, आवर रिसोर्सेज आर बीइंग वेस्टेड, मींस वी आर इनएफिशिएंट, हमारी ऑपरेटिंग इनएफिशिएंसी है, उस केस में आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी इन द फॉर्म ऑफ मोर रॉ मटेरियल, क्योंकि आप जितना रॉ मटेरियल खरीद के लेके आते हो उसका 20-30% तो वेस्ट कर देते हैं मेरे नए एम्प्लॉइज से, क्योंकि ठीक है। और फिनिश गुड्स में भी बहुत सारी क्या रहती है, ब्रेकरेज रहती है, फिनिश गुड्स भी अच्छी नहीं बनती, इंफीरियर क्वालिटी की बन रही हैं, तो हमारे जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं अगर क्वालिटी चेक को हम लोग फुलफिल नहीं करते। इन केस यू आर efficient in your operations, means you have the operating efficiency, you need less working capital, if reverse happen you need more working capital। बुक में से देखते हैं उसने क्या लिखा है। Firms manage its operation with variance or varied degrees of efficiency. For example, a firm managing its raw material efficiently may be able to manage with a smaller balance, means आप जैसे सिंपल सी एग्जांपल है, रॉ मटेरियल को मैनेज करने का मतलब क्या है, जितना रॉ मटेरियल यूज हो गया ठीक है, बाकी आप संभाल के रखते हो, ऐसे आपने बाहर नहीं फेंक दिया, मॉइस्चर के कारण खराब अगर हो जाए, बारिश में बाहर सामान पड़ा रहा तो खराब हो गया, इट मींस यू आर नॉट मैनेजिंग योर रॉ मटेरियल वेल, you spent a money on the purchase of your raw material, you need to manage it properly. If you are able to manage your raw material properly और आपका खराब नहीं होता सामान, तो उस केस में आपकी एफिशिएंसी को बढ़िया माना जाएगा। इस केस में आपकी क्या होगी, अब इसने रिलेट कर दिया इसको मेरे अकाउंट्स के साथ, यू विल बी हायर ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो विल बी हाई, व्हेन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज हाई इट मींस कि साल में बहुत बार आप अपना सामान बनाते हो और वो बिक भी जाता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में क्या बताती थी, हाउ मेनी टाइम्स यू आर सेलिंग द गुड्स इन अ ईयर, हायर द रेशियो बेटर विल बी योर एफिशिएंसी। सिमिलरली अ बेटर टर्नओवर रेशियो, बहुत जल्दी आप अपने डेटर्स से पैसा इकट्ठा कर लेते हो, मींस उधार पे सामान बेचने से पहले आपने अपने डेटर्स की फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक किया, बैड डेट्स ना के बराबर है, जीरो है, जितना टाइम पीरियड आपने अपने डेटर्स को दिया उतने टाइम पीरियड में वो आपको पैसा रिटर्न कर देते हैं। बेटर सेल्स एफर्ट मींस आपकी एफिशिएंसी है, अच्छे सेल्स मैनेजर हैं आपके पास, अच्छे सेल्स पर्सन हैं आपके पास, सेल्स मैन हैं आपके पास, जो सामान को बिकवाने में आपकी हेल्प करते हैं और फुली कोऑपरेट करते हैं। इन्वेंट्री का टाइम पे बिक जाना मतलब सेल टाइम पे हो जाना, डेटर से टाइम पे पैसे मिल जाना और अच्छी सेल्समैनशिप, these are the three contributors which enhance your operational efficiency. And if you are having the high operating efficiency, you will require less working capital. Such efficiencies may reduce the level of raw material, finished goods and debtors, resulting in lower requirement of working capital. बहुत जल्दी जल्दी debtors कैश में कन्वर्ट होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी इन्वेंट्री आपकी सेल्स में कन्वर्ट होती है, मींस आपका वो जो टाइम गैप है वो कम होता गया। जब आपके पास इमीडिएटली कैश इन हैंड आता है तो वर्किंग कैपिटल आपको कम चाहिए होती है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इमेजिन करते हैं दो सिचुएशंस, आप ऐसा सामान बना रहे हैं जिसके लिए रॉ मटेरियल लोकली अवेलेबल है, योर प्लांट इज
located at Jalandhar, and within Jalandhar only you are able to manage your raw material for your goods. So it takes a day or it takes few hours to arrange the raw material. ठीक है, कुछ घंटे ही लगते हैं आपको रॉ मटेरियल मंगवाने में, वो आपके पास आ जाता है और आपका प्रोडक्शन हैम्पर नहीं होता, प्रोडक्शन कंटिन्यूअस रहता है। इफ द रॉ मटेरियल इज अवेलेबल लोकली, you need not to keep a high stock of inventory in your godown every time, क्योंकि आपको पता है मैंने सुबह ऑर्डर करना और शाम को रॉ मटेरियल आ जाना है, कुछ घंटों में ही रॉ मटेरियल मेरे डिस्पोजल पे होगा। सो यू नीड नॉट टू स्टोर इट इन एडवांस। तो जब आपको रॉ मटेरियल स्टोर करके नहीं रखना, आपको उसमें पैसा ब्लॉक करके नहीं रखना, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लेस होगी। नाउ इमेजिन द सेकंड सिचुएशन, you are producing such type of goods which are of sophisticated nature, और उसका सामान जो रॉ मटेरियल है या तो दूसरी स्टेट से आता है, and even sometimes it comes from another country, आपको इंपोर्ट करवाना होता है, और इंपोर्ट में आपका महीना 1.5 महीना लग जाता है, और जब दूसरी स्टेट से आता है तो 15-20 दिन लग जाते हैं, और अगर कहीं स्ट्राइक हो जाए, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हो जाए, उस केस में महीना भी लग सकता है। So for that time period you need to keep the raw material in advance in your godown, और आपको एडवांस में इतना सामान लेके रखना पड़ेगा, मतलब महीने 1.5 महीने का, क्योंकि सामान को आते आते इतना टाइम लग जाता है। For that you require more working capital, क्योंकि you need to block your money to buy the more raw material so that your production should not hamper. Means crux ये हुआ, if the raw material for your goods is easily available or readily available, there is never a shortage of that raw material, you need not to keep a stock, buffer stock, आपको सरप्लस में उसका स्टॉक अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। Had you been buying a material from another state or even from another country, then you need to block the stock in order to avoid the challenges, in order to avoid the shortage of that material. So in that case, you will require more working capital. Growth prospects, if you want to grow, if you want to develop, it means कि आप पहले नॉर्थ और ईस्ट जोन में ही अपना सामान सप्लाई करते थे, अब अपने साउथ जोन ऑफ इंडिया एंड वेस्ट जोन ऑफ इंडिया को भी कैप्चर करना है। इवन आप अपना एक एक्सपोर्ट हाउस भी खोल रहे हैं। यू नीड टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर। व्हेन यू नीड टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर, यू स्पेंड मोर। इन दैट केस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एनहांस्ड। लेवल ऑफ कंपटीशन, अगर मार्केट में स्वेयर कंपटीशन है तो आप कभी भी अपने किसी भी कस्टमर को नाराज नहीं करोगे। जैसे ही वो आपसे डिससेटिस्फाई होगा, वो अपने के कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा सामान खरीदने के लिए। इफ यू आर फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, यू नीड टू बी रेडी एवरी टाइम। आप कभी भी अपने पास आने वाले कस्टमर को नो नहीं बोलोगे, आप एडवांस में सामान बना के रखोगे। इफ यू वांट टू रियली बीट द कंपटीशन इन द मार्केट, सो इन दैट केस यू रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। इन्फ्लेशन, अगर मार्केट में हर आए दिन रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ते हैं, पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ते हैं, हर चीज महंगी होती जा रही है, तो आपको पहले वही सामान जो रॉ मटेरियल आपका 70,000 में आ जाता था, अब वही सामान आपका 1 लाख और 1.25 लाख में आ रहा है। इट मीन्स कि आपको ज्यादा पैसा चाहिए होगा सेम लेवल को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज एवरीथिंग और द प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग हैज बीन इन्फ्लेटेड। When inflation is there in the market, आपको पहले जैसे लेवल को मेंटेन करने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए होगा। In that case, working capital requirement automatically increases. So this is the end of this chapter. We have 12 factors which help us a lot. और कभी भी सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा mention any 6 factors. He will be giving you the heading and he will be asking you explain the following factors affecting the working capital requirement. Or he will be picking one line from any of the paragraph and he will be asking name this factor affecting the working capital requirement. So you should know the exact explanation of each and every point given in your NCERT. कल इसका questions answer discuss करेंगे, right? And straight away we will start your next chapter of this book only, that is financial markets. Very, very important chapter which will tell us about the functioning of stock exchange. ठीक है, जिसने स्कैम 1992 देखा है उसके लिए इस चैप्टर को समझना आसान होगा। कैसे स्टॉक एक्सचेंज वर्क करता है, कैसे स्टॉक एक्सचेंजेस में स्कैम्स होते हैं, कैसे उन स्कैम्स को रोकने के लिए हमारी एक नेशन वाइड बॉडी बना दी गई जिसको नाम दिया गया सेबी। सो वो हर्षद मेहता का 1992 का केस ही था विच फोर्स्ड आवर इंडियन गवर्नमेंट कि नहीं, स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए भी एक बॉडी होनी चाहिए, यूनैनिमस बॉडी होनी चाहिए
जो वहां पे होने वाली मैनिपुलेशंस और स्कैम्स के ऊपर कंट्रोल रखे. सो वी विल डू दैट चैप्टर, वी विल स्टार्ट दैट चैप्टर टुमारो.